Today we shall solve the next additional problems based on the maxima and minima of the functions. Actually, we know that the maxima and minima of the function which can be obtained by, here we know that the maxima and minima of the functions can be obtained by taking a first order derivative is a 0. If this condition satisfies, the first order derivative is equals to 0, then at that case the function is a maximum or minimum. By using this condition we can obtain the values of x. If there are two values of x, then take a second order derivative and keep the values, put the values of both. If double derivative at some particular value having negative, then at that point A the function is maximum. If double derivative at a particular point B is positive, then at that point B the function is minimum. Okay, तर या पद्धतीनं फंक्शन मॅक्झिमम आणि मिनिमम आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे. तर आता या ठिकाणी हे प्रॉब्लेम्स आपण सॉल्व करत आलेलो आहेत. आता ॲडिशन प्रॉब्लेम आहेत. आज मला हा चॅप्टर पूर्ण संपवून टाकायचा आहे, म्हणजे उद्याला संदेश देऊन येऊ लागले होऊनच नाही, म्हणजे उद्याला आपल्याला या ठिकाणी इंटिग्रेशन सुरुवात करायचे, महत्त्वाचा चॅप्टर सुरू करायचे इंटिग्रेशन, म्हणून मी आज हे संपवून टाकतो. सी दिस, व्हॉट आर द कंडिशन्स. Okay, first problem, the perimeter of a rectangle is 10 centimeter. If one side is 4 centimeter, what are the other two sides of the rectangle which gives a maximum area? Suppose this is a triangle, rectangle, the perimeter of a triangle, we have given triangle. Suppose this is a triangle ABC. One side of a triangle is given, that is suppose AC is given 4. We consider first side AB is x, second side BC is y, and also we have given the perimeter of that triangle. Here the perimeter of that triangle is given, that is 10. Then our aim is to find out the other two sides of a triangle, because one side is given, then other two side means x and y, which we have to calculate. Okay, in triangle ABC, let AB is equals to x, BC is equals to y, and the third side, that is AC, is equals to 4. But the perimeter is given. What is that perimeter? AB plus BC plus AC is equals to 10. Perimeter means the sum of sides of a triangle, that is x plus y plus 4 is equals to 10. Therefore x plus y is equals to 10 minus 4, that is x plus y is equals to 6. Therefore y is equals to 6 minus x. ओके, तो इसी तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते. 1 जो सेकंड साइड है y, वी कैन पुट इन फॉर्म ऑफ x, दैट इज y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x. नाउ we can obtain the area of this triangle by using the Hero's formula. What is that formula? Area of a triangle A is equals to area of triangle equals to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c. Okay, area of triangle, yes, what is the s? But s is equals to a plus b plus c upon 2. S is equals to a means first side x, b means second side y, c means third side 4, divide by 2. Therefore s is equals to x plus y means what? We can put value of y, 6 minus x plus 4 divided by 2. Therefore s is equals to plus x minus x get cancelled.
10/2 means S is equals to 5. Now put in 1. Suppose we have considered this equation as a 1. Therefore put in 1. अभी 1 वैल्यू में लिखना है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो 1 की वैल्यू क्या आती है देखो, जब भी बच्चे यस को हम क्या लिख सकते हैं, कौन बताता है? जो भी ऑनलाइन है वो बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स मीन्स द सेमी पेरीमीटर। यहां पे जो एक्स होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर मीन्स एक्स। यस, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट ऑफ यस बोले तो क्या लिख सकते हैं? वैल्यू ऑफ यस इज 5। यस माइनस ए मीन्स व्हाट? अगेन एक्स। यस माइनस बी मीन्स 5 minus b means y. Y means that is y, and 5 minus 4. This is the area equals to root of 5 into 5 minus x. 5 minus value of y. We know that what is the value of y? Y is equals to, see this, we can write 6 minus x. So we can write value of y is 6 plus x. 6 minus minus plus, यानी कि 5 minus 4. So put this value, a is equals to root of, that means 25 minus 5x into minus 1 plus x into 1. Therefore a is equals to root of 25 minus 5x x minus 1. Again calculate this. A is equals to root of 25 into x means 25x. 25 into minus 1 means minus 25. Minus 5x into x means minus 5x square. Again the value of this is plus 5. Okay. We can write this as capital A is equals to root of, now this first constant term, what is that constant term? 25 minus 5x square minus plus 25x, then we can write as minus 20. Okay, is it correct? See this, we can say minus x. अभी इसकी वैल्यू हमें निकालना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो अभी एक कैलकुलेशन कर दीजिए, दैट इज वी कैन टेक अ 5 कॉमन. 5 into x means minus 5x. Again we can see this, minus 1 plus x. See this, what is the value of y? Value of y is 6 minus x. हाँ इथं गलत झालं पहा. 6 minus x म्हणजे 6 plus x. 5 minus x, 25 minus x. इथं ठीक आहे 25 minus 25. Again we can write minus 5x minus 5x square, minus minus plus 5x square ना, minus 5x plus 5 बराबर आहे क्या? देखिए हाँ, कैलकुलेशन चेक करा एकदा, परत एकदा कैलकुलेशन तुम्ही पहा. यस इन अ ब्रॅकेट एस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी. तो यहाँ पे कैलकुलेशन 25, 5 into 5x, 5 minus x, 5 minus y, 5 minus z. We can write this 6. X minus 1. 25 minus 25. ओके हाँ, तो ओके, तो यहाँ पे 5x 25 बराबर है क्या? देखो फिर से एक बार. ओके,
25x minus 25 plus 25, we can take this as it is. Okay. Now differentiating with respect to x, dA by dx, which is equals to, what is the derivative of root? Differentiating with respect to x, dA by dx equals to 1 upon 2 root, we can write minus 5x minus 1. इथं पहा बरं, इथं मल्टिप्लिकेशन मध्ये गलत झालंय. मायनस 25x मायनस 25 प्लस 5x मायनस 5x स्क्वेअर, इथं राहिला मायनस 5 मायनस मायनस प्लस 5 आणि इथं x राहिला पहा. म्हणजे इथं येतो पहा प्लस 5x आणि इथं 25x म्हणजेच 30x. इथं कॅल्क्युलेशन आपलं चेंज झाला होता, मला वाटलं. 1 minute. Okay. Now how to write this? We can write minus 5x square plus 30x minus 25. अब इसका हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dA by dx इज इक्वल्स टू 1 upon 2 root minus 5x square plus 30x minus 25 into, we can write again derivative of this, minus 10x plus 30. Therefore dA by dx equals to 2 in a bracket minus 5x plus 15 divided by 2 into root minus 5x square plus 30x minus 25. These two get cancelled. The area is a maximum when dA by dx equals to 0. तो यहाँ पे 0 पुट करिए. So this is equation 1. Though put dA by dA is equals to 0, put in 1. Put in 1. 1 में रख दीजिए. 0 इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 15 डिवाइड बाय रूट ऑफ, वी कैन टेक that is a minus 5x square plus 30x plus minus 25. So this transfer on right side, then denominator goes to 0. 0 is equals to minus 5x plus 15. Therefore 5x is equals to 15, x is equals to 3. Thus there is only one value of x. अगर यहाँ पे x के 2 वैल्यूज आते हैं तो 1 वैल्यू को मैक्सिमम होता है, 1 वैल्यू को मिनिमम होता है. There is not necessary to find the second order derivative. Therefore the, now put x is equals to 3. Therefore y is equals to 6 minus x, y is equals to 6 minus 3, that is equals to 3. Therefore x is equals to 3, y is equals to 3. Therefore other two sides of a triangle are, other two sides of a triangle are 3, 3 units, which gives maximum area, which gives maximum area. इसी तरह से ये निकालना है, कैलकुलेट कर सकते हो आप अच्छी तरह से इसे लिख लीजिए. Okay, next problem we shall discuss. What is that next problem? See this, a box with a square base. यहाँ पे अभी देख लीजिए, box with a square base. 1 minute.
फर्स्ट आई शैल रिमूव दिस. हाँ, अ बॉक्स विथ स्क्वायर बेस. ये देखो एक बॉक्स है जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर बेस है. ये देखो ये बॉक्स है जिसका बेस स्क्वायर बेस है और जिसका जो टॉप है, देखो ये जो टॉप है बॉक्स का ओपन टॉप है. बेस इज अ स्क्वायर. सपोज द लेंथ ऑफ अ बेस वी हैव कंसिडर्ड एज x. दिस इज a x. height is considered as a y. Okay. Also what we have given, a box with a square base and open top. The surface area of a box is 192. यानी कि जो वर्टिकल सरफेस है, ये सरफेस, ये जो सरफेस एरिया है बॉक्स का वो 192 है, स्क्वायर सेंटीमीटर है. What should be its dimension in order to volume maximum? Let side of a base is equals to x, height equals to, suppose that is h, which is equals to y. जो इसकी बेस की जो लेंथ है वो x कंसिडर करने का है. वी हैव कंसिडर द लेंथ ऑफ बेस इज x, दैट इज अ स्क्वायर बेस. ये स्क्वायर बेस होने के नाते सभी साइड्स बेस के सेम होते हैं, x होता है. ऑल द साइड्स ऑफ बेस विल बी x बिकॉज दैट इज अ स्क्वायर बेस. height is considered as y. Therefore there are 4 vertical sides are same. Now surface area, इसको टॉप नहीं है, ओपन टॉप है, तो surface area, see this, surface area of base plus 4 area of vertical sides. 4 times vertical sides कितने हैं, देखो 4 times है, तो 4 times of this. Now surface area is equals to a, suppose a equals to area of base means which is a square, x square plus 4 times. अभी देखिए ये रेक्टेंगल टाइप है, इसका एक एरिया निकाल दीजिए. लेंथ और ब्रेड बोले तो x इंटू वाई, x इंटू वाई. ओके, तो यहां पे हम एरिया इज 192 विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4xy. सो हम वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ y. इस तरह से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट इज 192 minus x square equals to 4xy. Therefore y is equals to 192 minus x square divided by 4x. Suppose this is equation number 1. We consider this. आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, ये जो बॉक्स है ऐसा बॉक्स वर्टिकल बॉक्स है, यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ दिस इज एज लाइक अ box. This book is as like a box, but whose base is square based open top. यानी कि टोटल कितने सरफेसेस होते हैं, उसको टॉप नहीं है, यानी कि सरफेसेस कितने होते हैं, इसको सरफेसेस 5 होते हैं. 1 2 3 4 5. जो वर्टिकल सरफेस होता है वो रेक्टेंगुलर साइज में होता है और बेस स्क्वायर साइज में होता है. तो उसका जो सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि 5 सरफेसेस का एरिया आपको निकालना है. अगर 5 सरफेसेस का एरिया आपको निकालना है तो 5 सरफेस के एरिया, वर्टिकल सरफेस जो है वो रेक्टेंगुलर टाइप है, वो 4 होते हैं, वो सेम साइज के, इसलिए 4 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कैसे फार्मूला में कन्वर्शन कर दिया, देखो ये फार्मूला 4 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिकॉज वर्टिकल साइड इज इन रेक्टेंगल फॉर्म. and area of base means which is a square. स्क्वेअरचा एरिया कसा असेल,
साईड स्क्वेअर असतो आणि रेक्टँगलचा एरिया लेंथ इंटू ब्रेड, मग 192 इज गिवन, मग कॅल्क्युलेट केलं दिस. आता व्हॉल्यूम मॅक्झिमम म्हटलंय पहा, आपण व्हॉल्यूमकडे जाऊ. वी हॅव व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर व्हॉल्यूम? व्हॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाईट. कुठलंही व्हॉल्यूम काढायचं झालं तर एरिया ऑफ बेस इंटू हाईट मीन्स एरिया ऑफ बेस into height, that is volume is equals to area of base means x square into height means y, v is equals to x square plus see this area of base, बेस का एरिया स्क्वायर साइज होने के नाते उसका एरिया हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और हाइट बोले तो y है तो h y एक्स स्क्वायर इंटू पुट द वैल्यू ऑफ y, y means 192 minus x square divided by 4x from 1. तो x square get cancel, v is equals to x in a bracket 192 minus x square divided by 4. So v is equals to 192x minus x cube divided by 4. ओके, तो यहाँ पे x आता है 192x minus x cube divided by 4. Therefore v is equals to 1 by 4 in a bracket 192x minus x cube. अभी एरिया वॉल्यूम मैक्सिमम हमें निकालना है. वॉल्यूम कब मैक्सिमम होता है? जब इसका एरिया और वॉल्यूम का डेरिवेटिव dA by dx 0 आता है, तब हम इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एरिया मैक्सिमम कैसा होता है देखिए, तो वॉल्यूम मैक्सिमम हमें निकालना है. एक्चुअली द वॉल्यूम इज अ मैक्सिमम व्हेन इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0, differentiating with respect to x, dv by dx equals to 1 by 4 into 192, x का डेरिवेटिव -1, 3x square, that is dv by dx equals to 192 minus 3x square divided by 4. Suppose this is equation 3. Now we can write a volume is a maximum. See this, the volume is a maximum or minimum when dv by dx equals to 0. Put in 3. यहाँ पे इसमें लिख दीजिए 3 में 0 equals to 192 minus 3x square divided by 4. Transfer this on right side means 0. 0 is equals to 192 minus 3x square. Therefore 3x square which is equals to 192. हाँ, जो भी बच्चे आदित्य निकम 3 आ गई क्या वैल्यू? इस प्रॉब्लम में वैल्यू निकाल दीजिए. वेरी गुड. 5x, हाँ बरोबर है आदित्य निकम, अक्षय अबदार, ठीक है. तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 192 डिवाइड बाय 3. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 1 the 3, 3 6 the 18, 3 4 the 64 means what? Therefore x square is equals to 8, therefore 64. Therefore we can write x square is equals to 64. Therefore x is equals to plus or minus 8. Therefore x is equals to 8 or x is equals to minus 8. But x is the length of side, it should not be, which should not equals to minus 8. Length of side should not be equals to minus 8. But x is equals to minus, x is not equals to minus 8 because length is always positive. Therefore x is equals to 8.
आता एक्सच्या सहाय्यानं आपल्याला वायची व्हॅल्यू काढायची आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ वाय? पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ पे रखना है. पुट इन इक्वेशन 1, y is equals to, what is the value of y? 192 minus x, oh sorry, 192 minus x square divided by 4x. 192 minus x square divided by 4x. देखो ये बराबर है क्या? x क्यूब है क्या? x स्क्वायर. ओके, तो y is equals to 192 minus x square means 64. x की वैल्यू 8 है, x square means 64 divided by 4 into 8. Now calculate this. Y is equals to, that is 8 2 1 divided by 4 into 8. 8 1 the 8, 8 1 the 8, नहीं, 4 1 the 4, 4 2 4, that is y is equals to 4. Therefore we can take, hence x is equals to 8, y is equals to 4, be the dimensions which gives maximum value, which gives a maximum volume. यहाँ पे जो भी बच्चे ऑनलाइन है, मैं देखता हूं किसी ने आंसर निकाल दिया है क्या? बंद पडला का रे व्हिडिओ? व्हिडिओ बंद पडला संदेश. ओके, तो आप निकाल दीजिए इसको. किसी ने नहीं निकाला मेरे ख्याल से. वन मिनट. हाँ, तो इसी तरह से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर से एक बार देख लीजिए क्या है. ये देखो, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका बेस स्क्वायर बेस है, स्क्वायर साइज में, और टॉप उसका टॉप नहीं है, और उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, यानी कि 4 वर्टिकल सरफेसेस एंड बेस, स्क्वायर बेस 5 सरफेसेस है, जिसका एरिया 192 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है. तो इसी आधार पे आपको उसके डायमेंशंस निकालना है कि जिस वजह से उसका वॉल्यूम मैक्सिमम, अगर वॉल्यूम मैक्सिमम लेना है 192 सरफेस एरिया लेकर वॉल्यूम मैक्सिमम निकालना है, तो डायमेंशंस कितने होने चाहिए, दैट इज लेंथ एंड हाइट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे डिस्कस करना है. तो ये दिस इज द प्रोसेस टोटल. आप फिर से एक बार ये वीडियो चेक करके देखिए. अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं. यू कैन कैलकुलेट. ओके, नेक्स्ट वी शैल डिस्कस द प्रॉब्लम. सी दिस 5x. ओके, हाँ, काय म्हणतो निकम, आदित्य निकम, सुमती अगस्ती, बरोबर आहे का? आन्सर चेक केलात का? आदित्य निकम, अक्षय, राजेंद्र कछवे. ओके, डेफिनेट इंटीग्रल, राजेंद्र कछवे, डेफिनेट इंटीग्रल पहले नहीं ले सकते हम, पहले इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लेना है, बाद में डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ जाते हैं. ओके, राजेंद्र कदम, सबसे पहले हमें अभी इनडेफिनेट इंटीग्रल लेना है, बाद में हम डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ जाएंगे. बिकॉज
we can't solve definite integral directly without calculation of the indefinite integral. सबसे पहले indefinite integral देखना है, बाद में डेफिनेट की तरफ जाते हैं. ओके, वी शैल सी दिस 18th प्रॉब्लम. अभी 18th प्रॉब्लम देखना है. सी दिस, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? हियर द प्रॉफिट ऑफ अ फंक्शन p of x for a firm selling x atoms. See this, number of atoms which is given as a x atoms per day is given by p of x equals to this. Find the number of atoms selling x atoms, number of atoms selling x atoms per day. ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है इसका. तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्या है देखो, मैं देखता हूं. देयर इज वन कंपनी. सी दिस, व्हाट इज दैट? कंपनी इज सेलिंग देयर प्रोडक्शंस. यहाँ पे जो कंपनी है वो प्रोडक्शंस को सेल करती है. तो हाउ मेनी प्रोडक्शंस यू हैव टू सेल? ये प्रॉब्लम थोड़ा आधा प्रॉब्लम है. हाँ, तो p of x is equals to x, selling x atoms per day. Find the number of atoms selling per atom per day, x atoms. मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करना है. सो दिस number of atom x. Now x atoms, see this, given that what we have to given? Actually we have given that the profit is given by in the function p of x equals to 150 minus x into x minus 625. यानी कि p of x is equals to 150 x minus x square minus 1625. That is p of x is equals to minus x square plus 150 x minus 1625. Suppose this is equation number 1. Find the number of atoms that firms should manufacture to get maximum profit. That means we have to find out the number of atoms. ओके, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है. तो मैक्सिमम प्रॉफिट है. अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो उसका डेरिवेटिव 0 होना है. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x means p dash of x is equals to minus 2x plus 150. A profit is maximum or minimum? See this, the profit is maximum or minimum when p dash of x is equals to 0. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. पुट इन 1, पुट इन सपोज सेकंड. इसको सेकंड दीजिए. ये हो गया, ये वाला हो गया सेकंड और ये वाला फर्स्ट. पुट इन सेकंड. 0 इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 150. हाँ, सुमिति अगस्ती बराबर है का बाग. दैट इज इक्वल्स टू 2x is equals to 150, x is equals to क्या आता है देखो, that is 150 divided by 2, x is equals to 75. Means number of atoms must be produced, or the number of atoms will be how many? 75. See this. By the second order test we can take a second differentiation again by differentiating equation second with respect to x. Means p double dash of x is equals to, ये देखो माइनस 2x का डेरिवेटिव कितना आता है? -2 प्लस 0
म्हणजेच पी डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू -2 लेस दैन 0। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो प्रॉफिट मस्ट बी मैक्सिमम, द प्रॉफिट मस्ट बी मैक्सिमम। यहां पे प्रॉफिट कितना आता है, मैक्सिमम होता है प्रॉफिट। ओके, therefore for the maximum profits, therefore the conclusion, for the maximum profit number of atom should be x is equals to how many, 75। ओके, इसी तरह से हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम प्रॉब्लम है, अभी ये भी आप इसी तरह से सॉल्व करना है। कौन सा, 19, 20 भी इसी तरह से सॉल्व करना है। ये दो प्रॉब्लम रह गए, ये दोनों आप होमवर्क के लिए सॉल्व कीजिए। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। एक्चुअली दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व, दिस 19 एंड 20, यानी कि यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। हम कल से अभी इंडेफिनाइट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडेफिनाइट इंटीग्रल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी इसके ऊपर हम अगले संडे को जो भी सेकंड पेपर के जितने भी चैप्टर होने वाले हैं उस पे हम टेस्ट लेंगे, यानी कि फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन डेरिवेटिव, इस दोनों चैप्टर पे हम अगले संडे को टेस्ट लेंगे। जो भी चैप्टर्स हुए वो आप अच्छी तरह से फॉलो करो। अगले संडे को हम टेस्ट लेने वाले हैं, दो, डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें से मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बाद में देता हूं, और इसके IIT JEE को कौन से प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कौन से आप देखिए यहाँ पे। एक्चुअली इन दिस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यू मस्ट कैलकुलेट maximum minimum value, approximate value, tangent and normal area, that is the tangent and normal. These problems are important for IIT JEE, therefore you have to do perfect that problem। okay, so हम यहाँ पे रुकते हैं। तो ओके, मानसी पाटील, जीत पाटील, हाँ, तर मी सर्वांना एवढं सांगतो की आपण पुढच्या संडेला 2 चॅप्टरवर टेस्ट घेणार आहोत, ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह आणि डेरिव्हेटिव्हवर 40 मार्क्सची घेणार आहोत, MCQ टाईप घेणार आहोत, लक्षात ठेवा। तर MCQ टाईप क्वेश्चन पेपर घेत असल्यामुळे याच बेस्ड तुम्हाला सॉल्व करायचे, तर MCQ टाईप असल्यामुळे तुम्ही चांगल्या पद्धतीने तयारी करा। का थेरी टाईप घ्यायचं, कसं घ्यायचं सुमती, काय वाटतं तुला, थेरी टाईप घ्यायचं का MCQ टाईप टेस्ट घ्यायचं? आदित्य निकम, अक्षय, कोणत्या पद्धतीने टेस्ट घ्यायची अपेक्षा आहे तुमची सांगा, म्हणजे त्या पद्धतीने टेस्ट घेऊ। पुढच्या संडेला 40 मार्क्सची 2 चॅप्टरवर टेस्ट घेऊ। ओके, आपण नंतर डिसाइड करू ऑब्जेक्टिव्ह का MCQ। तर या ठिकाणी थांबू। नमस्कार, गुड बाय।